एक मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए। लेकिन पंजाब के लोग क्या सोचते हैं, हम सीधा गांव में उन्हीं से बात करते हैं। आप लोग सिंघू बॉर्डर में आप लोगों ने पूरा एक प्रदर्शन किया। अब जब चुनाव में किसान खड़े हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप लोग? क्या सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे? हाँ जी, हाँ मैडम, पूरा समर्थन करेंगे। किसान ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ जी, ਜੇ खड़ेंगे तो पूरा साथ दूंगे जी किसानों का। आप खुद किसान हैं? हाँ जी, किसान ही। तो क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपको लगता है कि आपका मुद्दा नॉर्मल पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, या आपको लगता है कि ये सही कदम है कि किसानों को अब चुनाव में जाना चाहिए? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਖੜੂੰਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਰਹੂੰਗੇ ਜੀ। किसान के साथ रहेंगे। आप लोग क्या मानते हैं, जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने सिर्फ रोटियां सेकी हैं या किसानों के लिए कुछ किया भी है? ना जी, किसानों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। गरीब बंदे बारे कोई नहीं सोचता। वो कोई नहीं सोचते भाई। किसान ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ किसान एक तक हो जी। एमएसपी हो या बाकी मुद्दे हैं, आपको लगता है कि किसी ने उठाए हैं अभी तक? ना तो किसी ने हटाया जी, ना गरीबों बातें सोचता कोई, ना किसानों बातें सोचते हैं। ये तो अपने अपने पॉलिसियां दियां। 117 सीट है, कौन आपको लगता है कि कौन जीतेगा? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਰੱਬੇ ਸੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਡਮ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝੋਏਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਾਂ। ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਮ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ। ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਮੁੱਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧੀਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਦੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ EMPLOYEES ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਸਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੂਗਾ? लगता है कि दूसरी पार्टियों का वोट काटेगी ये पार्टी? 90% मानता हूँ जी, 10% शहरी वोट छोड़ देता हूँ मैं। जो मानते हैं कि हम तो कमा के खाते हैं, जो ऐसे करके खाते हैं, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। पर सारा ओवरऑल तो पंजाब ही है ना। पंजाब में सभी तरफ किसानी है। अभी आप शहरों के पास यहाँ पे आए हो, कितने किलोमीटर के? आधा किलोमीटर है यहाँ से शहर का एरिया, ठीक है। तो है तो शहर के अंदर भी अभी किसान है, तो वो तो अपने हकों के लिए अपने ही नुमाइंदों। देखिए ना, ये किसान संयुक्त मोर्चा है, उन्होंने कहा है कि जो खड़े हो रहे हैं वो हमारे साथ नहीं है, तो एक डिवीजन उधर भी है। चलो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसान, क्योंकि वो उनकी अलग से पार्टी है जो एक मेजॉरिटी में आई है, ठीक है। वो अपने हक लेना जानते हैं, अभी लिए हैं, जो सभी को मालूम है, ठीक है। अगर आते हैं, जो आएंगे पार्टी में, वो भी किसान ही हैं, किसानों की तरफ से ही आएंगे वो। तो आपको लगता है इस तरह से मतभेद नहीं होना चाहिए था? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो
पॉलिटिशियन में आना ही नहीं चाहते, पॉलिटिकल उनका कैरियर ही नहीं है, या उनका मुद्दा ही नहीं है कि पार्टी बनाएं, हम जहाँ खड़े हो जाएं, उनका शुरू से किसान ये मुद्दा राजनीति नहीं है। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अभी जो देखोगे आप, कहीं भी वो किसान ही है, जिनके नाम में पीछे सिंह लगा है, कोई पिछोकड़ उनका किसान ही है। अभी जब वहाँ राजनीति में पार्टियों में चले जाते हैं तो कहाँ पॉलिटिशियन बन गए, ठीक है, उनके आगे मिल जाती हैं सिक्योरिटियाँ, मिल जाती हैं, वाहवा हो जाती है, उससे ज़्यादा बंदे बदल जाते हैं, और आगे जाके झुकना हो जाता है कि सीट नहीं छोड़ना चाहते हम। जैसे कि पहले अभी बीजेपी के नेता थे जहाँ पे पंजाब में, वो अभी तक बोलते थे कि ये जो कानून आए हैं वो बिल्कुल सही हैं, मानते थे ना, तो फिर मोदी ने वापस क्यों लिए, सही थे, कितनी गलतियां थी कानूनों में, सौदे कितनी की हैं उन्होंने। The BJP had been on the back foot because of the 3 farm bills, but no longer so. They feel the tempers have calmed down, and they are also taking in equal number of Sikh faces. So whether be it Captain Amrinder Singh, whether it's Manjinder Singh Sirsa, whether it is Gurmeet Singh Sodhi, so number of Sikh faces also joining it. But what is the larger strategy we have with us? The BJP State General Secretary Subhash Sharma with us. Sir, it seems that you were on a back foot, but now that the meetings are taking place, how is the seat sharing? Many are saying BJP is going to be fighting as many as 80 seats, and what are you looking at for your alliance partners? First of all, I want to tell you we were never on back foot. And second, we will be a major partner in this arrangement. How many seats we will be contesting, it will be finalized after the meeting. Our central leadership is talking with both the leaders, Captain Saab or Dhindsa Saab. So everything will be finalized. Also, how crucial is this meeting? Is this a final meeting, or this is a series of meetings which is taking place? And also, because remember 117 seats in Punjab overall, how are you looking at the urban and the rural divide, and are you going to contest both of it, or you think this is going to be done equally between the alliance partners? Look, we are not talking in terms of seats, how many seats we will contest, or Dhindsa ji or Captain Saab will contest. Our focus is to develop the Punjab. How we can save Punjab from the misrule of Congress, how we can save the Punjab from the false promises of Arvind Kejriwal. We want a Punjab which is sorry. But what is significant is that the farmer agitation played a major role. Now the farmers have formed their own party, and it also seems that whosoever farmers side with will have a winning hand. I think people of Punjab are wise enough, and they know Narendra Modi government's work for the farmers, for the traders, for the industry, for the peace and prosperity. So our track record, our credentials are better than the Congress, than the Aam Aadmi Credentials are better, claims being made, and the Prime Minister is expected to be here in Punjab in the next 1 week. We will see how it goes, but right now, BJP formalizing its strategy for Punjab. They have not even started. They're doing a very small scale, but we've also been told that once the Prime Minister has made his rally, BJP is going to scale up as far as events are concerned. A shot in the arm for the Aam Aadmi Party. They're surging ahead in the municipality polls. We have with us Raghav Chadda. Sir, how do you see this playing out, especially on the national level? There are also Punjab polls. Is this the sort you're looking at? Look, this is the victory of Arvind Kejriwal model of governance. And the people of Chandigarh have unequivocally, in no uncertain terms, in an absolutely unambiguous manner said, ek mauka Kejriwal nu. Ek mauka Arvind Kejriwal ko. And it shows that people of Chandigarh were disenchanted and frustrated with these established political parties. In 1996, when the Chandigarh Corporation was constituted, both BJP and the Congress Party have ruled the Chandigarh Municipal Corporation for 13 and 12 years respectively. People were absolutely disenchanted with the corrupt and malafide rule of these parties, and But they do you have expect now a spillover as far as Punjab is concerned? We've seen how equations have changed because of the farmer agitation. Now there has been a repeal. There's a talk about Prime Minister coming in. Captain Amrinder Singh is in Delhi. There are a couple of meetings happening there. Do you think that is something which is going to... Look, the sentiment that we witnessed in Chandigarh was that people, in no uncertain terms, said that we are absolutely frustrated with these existing established Rivaiti Siyasatdan and political parties. We want an alternative, a new form of governance, and they were with a lot of hope looking at Mr. Kejriwal. People of Chandigarh have voted for Mr. Kejriwal. People of Punjab will vote for Mr. Kejriwal, and I can say this with a sense of responsibility
that Chandigarh is merely a trailer. The picture of Punjab is still left to be seen. पिक्चर अभी बाकी है जैसे आप बोल रहे हैं, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं जेपी नड्डा से, अमित शाह से। अब आप जब ये सब देखते हैं, आपको लगता है कि किसान उनको माफ करेंगे, क्योंकि किसानों को वो करने की बड़ी कोशिश देखिए, जिस किसान को इन लोगों ने 1 साल तक खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोने के लिए छोड़ दिया, जहां 750 से ज्यादा हमारे किसानों को शहादत देनी पड़ी, उस भारतीय जनता पार्टी से किसान कैसे कोई बात कर सकता है, या उनसे कैसे उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, उससे आपको लगता है कि फ्रैगमेंट होगा? कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अभी कोई अनाउंसमेंट आई है, अभी तो बहुत शुरुआती दिन है। मैं आज चंडीगढ़ के नतीजों को देखते हुए आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मूड चंडीगढ़ का है वही मूड पंजाब का है, और चंडीगढ़ तो सिर्फ झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। वन फाइनल क्वेश्चन सर, ओमिक्रॉन के ऊपर एमएचए ने अभी एक एडवाइजरी इशू की, एक ऑर्डर इशू किया है। तेजी से बढ़ते इसके केसेस खासतौर पे दिल्ली में, और हम अभी बाकी जगह देख रहे हैं, पोल बाउंड स्टेट भी है, इलेक्शन कमीशन ने भी इसका कॉग्निसेंस लिया है। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि तमाम सरकारें मुस्तैदी से इस न्यू वायरस से लड़ने के लिए मैदान में उतरें। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऐसे देशों से जहां पर इस वायरस का वेरिएंट देखा गया है वहां बंद करें। हम लोगों को बहुत प्रोएक्टिवली मेजर्स लेके अगर कुछ कर्व्स लगाने हैं मूवमेंट्स पर, लोगों के कांग्रेगेशंस पर, वो लगाएं और हरकत में आएं, क्योंकि सेकंड वेव और फर्स्ट वेव में हमने देखा था कि केंद्र सरकार खास तौर पे प्रोएक्टिवली सामने नहीं आई थी। जब फैल गया वायरस पूरी तरीके से, तब हमने देखा कि केंद्र सरकार और कुछ सरकारें हरकत में आई, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कई बेगुनाहों। Is Delhi prepared for the third wave? Delhi is absolutely prepared. Mr. Kejriwal, the Honorable Chief Minister of Delhi, has already convened several meetings and addressed the people of Delhi, saying as far as medical facilities are concerned, we are absolutely ready. As far as the state of oxygen is concerned, we are absolutely ready. And as far as taking preemptive measures, precautionary measures to curb the spread of the virus is concerned, we are absolutely ready, and we are enforcing those measures. So hopefully, with the grace of God, as far as Delhi is concerned, we can say that we will be able to curb the spread of the virus with active cooperation from the people of Delhi. That was Raghav Chadha speaking to India Today. ओमिक्रॉन के भारत में बढ़ते कदम और उसी के साथ एमएचए ने एक दिशा निर्देश दिया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं ओपी सोनी, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी सीएम हैं पंजाब के। सर, कोई केस तो नहीं आया, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं एक मास्क वायलेशन हो रहा है कोविड-19 के नॉर्म्स का। कोई मास्क नहीं डालता है। अगर हम बात करें कोई जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है, रैलीज में नहीं हो रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप सिचुएशन और क्या तैयारी है? देखो, पंजाब सरकार की पूरी तैयारी है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक पंजाब में कोई केस ओमिक्रॉन का नया आया ही नहीं, और हमारी ओर से वैक्सीन का जो काम चल रहा है, हमने पंजाब में 2,60,00,000 के करीब लोगों को वैक्सीन जो है दे दिया है फर्स्ट डोज, और 90,000 लोगों को डबल डोज हमने वैक्सीन की दे दिया अभी तक। और हमारी पॉपुलेशन जो है पंजाब की तकरीबन 2,80,00,000 के करीब है, और अभी तक हमने 90% के ऊपर जो है वैक्सीन दे दी है लोगों को। सर, चुनावी सरगर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, उसी तरह से हम देख रहे हैं रैलियां भी हो रही हैं, लेकिन एक इसमें जो नया एंगल वो है कि पंजाब में फार्मर यूनियंस हैं जिन्होंने फैसला किया कि चुनाव में उतरेंगे। उससे आपको क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी नई पार्टी बना सकता है। ये तो हमारे संविधान में सभी को हक है, और इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। बोर्ड का भी हर को अधिकार है। जो किसान बात कर रहे हैं नई पार्टी बना के इलेक्शन लड़ने का, उनका अपना राइट है, और कांग्रेस पार्टी को कोई ऐसी कोई मुश्किल आने वाली तो क्या आप कांग्रेस पार्टी के नाते आप लोग उनको वो नहीं कर रहे हैं, या किसानों की बातें उठा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ऐसी बात आ रही है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से उन्हें पार्टी बनाने की जरूरत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी पार्टी तो शुरू से ही किसानों के साथ है। एजिटेशन में ये जो काले कानून थे 3, हमने तो इनका ही साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा किसानों के साथ रही है, लेकिन ये तो उनकी अपनी सोच है किसानों की, और किसान, मैंने तो पहले ही बोला है, ये इनकी सोच है। इलेक्शन लड़े
कोई ऐसी बात नहीं। तो साथ ही में अगर हम बात करें, ये भी बात आ रही है कि प्रधानमंत्री आएंगे। आपको लगता है कि किस तरह से, जिस तरह हमने देखा कि यूपी में लगातार वो जा रहे हैं, यहाँ पे आपको लगता है कि लोग, जनता है, किसान है, ये माफ़ करेंगे उन्हें, या बीजेपी पीएलसी के साथ जो आज मीटिंग भी थी कैप्टन साहब की आज, उसके बारे में जो एक नया गठबंधन हुआ है, क्या सोचते हैं? देखो, ये तो उनकी पार्टी की सोच है, क्या करती है बीजेपी, किसके साथ अलायंस करती है। कैप्टन साहब के साथ किया है, ढींसा जी के साथ किया है, सो 3 पार्टी इकट्ठी होगी। और मैं फिर ये बात बोलता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने काम किए है पंजाब में। हमारी 5 साल सरकार थी, हमने जो वादे किए थे लोगों के, वो सभी हमने 95% जो लोगों के वादे किए थे वो पूरे किए। और कांग्रेस पार्टी अपने कामों को लेके लोगों में जाएगी। पर आपके कैप्टन तो वहाँ चले गए। कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी पार्टी तो इधर ही है ना, कैप्टन साहब तो चल गए, बाकी तो सारी पार्टी इधर ही है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। ऐसी नहीं एक आदमी छोड़ जाता तो पार्टी को कोई मुश्किल आती है, ऐसी कोई मुश्किल आने वाली नहीं, सब ठीक होगा। आगे आने वाले समय में क्या सोचते हैं कि चुनाव किन मुद्दों पे कांग्रेस लड़ेगी? देखो, हमने तो पहले बोला है मैंने, और कांग्रेस पार्टी अपने कामों को लेके लोगों के दरबार में जाएगी। और हमने जो वादे किए थे, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे हमारे ट्रेडर्स हैं, चाहे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे गरीब लोग हैं, हमने जितने भी वादे लोगों के साथ किए थे कांग्रेस पार्टी ने सारे पूरे किए हैं। एक आखिरी सवाल, आप मानते हैं ये मल्टी कॉर्नर फाइट होगी, 6 कॉर्नर फाइट होगी, जहाँ पे कई नई पार्टी, छोटियां पार्टी भी आएंगी? बीजेपी की जैसे कि अलग अलायंस हो गया है, शिवमनी अकाली दल का एक नया अलायंस हो गया है, तो आपको लगता है कि एक जो समीकरण है वो एक नया मिल रहा है, एक नया माहौल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जितनी पार्टी आएंगी उतना ही हमको फायदा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी तो एक ही है, और कांग्रेस पार्टी आगे भी इलेक्शन पंजाब में शुरू से लड़ती रही है, और फिर इस दफ़ा भी हमने जाना है कांग्रेस पार्टी ने। और जितनी पार्टी ज़्यादा बढ़ेंगी उतना कांग्रेस पार्टी को उसका बेनिफिट है। और हमने कामों को लेके लोगों के बीच जाना है, और लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। 22 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। The farmers' vote will be decisive in this Punjab political season. Each and every political party know it, and that is why they are in race against each other to woo the farmers. The Akali Dal, for instance, have distanced themselves from the BJP to woo the farmers. Similarly, the Congress party has even talked about making a memorial at the peak of the farmer agitation for the dead farmers. Again, the Aam Aadmi Party and the BJP are not too far behind when it comes to wooing the farmers. What is clear is that whosoever wins the farmers will win elections. With camera person Dalveer Singh, this is Kamaljeet Sandhu in Mohali, Punjab for India Today.